अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. وقال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل ولا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ذي الحجة فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتسبيح تعدل صيام يوم منها بصيام سنة. وفي رواية: وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، آج 23 ذوالقعدۃ الحرام ہجری 1443 اشہر حج میں سے دوسرا عظیم القدر مہینہ قریب الختم ہے. اگر 29 کا چاند آئندہ جمعرات کو ہو گیا تو جمعہ یکم ذی الحجہ پڑے گی، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو سنیچر کو پہلی تاریخ ذی الحجہ کی پڑے گی، یعنی سن ہجری 1443 کے اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ اور آج اس کی 23 تاریخ ہے. اسی مناسبت سے میں نے اگر آنے والی جمعرات کو جمعہ سے پہلی تاریخ ہو جائے تو ذی الحجہ کے 10 دنوں کے احکام اور فضائل بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا مضمون جہاں سے باقی چلا آ رہا ہے، حج حرمین شریفین کے فضائل پر بات ہو چکی. حج کے 5 دن، تو آج ذی الحجہ کے 10 دن کی فضائل اور حج کے مختصراً 5 دن، چونکہ حجاج کرام ہماری بستی سے بھی روانہ ہو گئے، کل بھی روانہ ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد کی تاریخوں میں بھی. اس مناسبت سے موقع کے لحاظ سے یہ چند باتیں عمل کے زمانے میں جب بیان کر دی جاتی ہے تو یاد بھی رہ جاتی ہے اور عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. آج 23 ذوالقعدۃ الحرام ہے، یعنی اشہر حرم میں کا دوسرے مہینے کی 23 تاریخ ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں 4 قسمیں کھائی: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. 5 قسمیں ہو گئی. قسم ہے نماز فجر کی یا
कसम है सुबह सादिक के टाइम की और जिलहज महीने की 10 रातों की और कुर्बानी की रात की और अराफा की रात की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब कसम इरशाद फरमाते हैं, वल फज्र व लयालिन अस्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र, और कसम है रात की जब वो जाने लगे। 5 कस्में खाई है। इसमें खास तौर पर जिलहिज्जा महीने की 10 रातें। पहली रात 29 के चांद के हिसाब से जुमा की रात पड़ेगी और 30 के चांद के हिसाब से शनिचर की रात पड़ेगी। अगर 29 का चांद हुआ तो इस रात को डबल फजीलत मिलेगी, एक जुमा की रात की फजीलत और एक जिलहज महीने की 10 रात की फजीलत। इनमें की पहली रात अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम खाई। ये दिन भी बड़े हैं और ये रातें भी बड़ी हैं। इसीलिए उलमाए तहकीक ने लिखा है, पूरे साल में अगर रातों में कोई बड़ी रात है तो वो रातें हैं जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में खाई, और वह जिलहिज्जा महीने की 10 रातें हैं। वलयालिन अस्र वश्शफ़अ, और कुर्बानी के दिन की कसम, वल वत्री, और 9 जिलहज्जा की कसम जिसमें हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अराफा अदा किया जाता है। ये तो 10 रातें और कुर्बानी का दिन जिलहिज्जा के अशरे में पहले में पड़ता है और अराफा का दिन भी इसमें पड़ता है। इन 10 रातों में और 10 दिनों में कौन से काम किए जाएंगे? 3 रिवायतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अफज़ल वलल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह। इबादत के एतबार से सबसे अफजल दिन और अल्लाह के यहाँ आमाल जिसमें सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, 2 चीजें हैं। इबादत के एतबार से सबसे अफजल दिन और अल्लाह के यहाँ इबादत जिसमें बहुत प्यारी है, वो जिलहिज्जा के 10 दिन हैं। क्या करेंगे इसमें? फ़अक्सिरू फ़ीहा मिन अत-तहलील, कसरत से पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तस्बीह, सुबहान अल्लाह। फ़अक्सिरू फ़ीहा मिन अत-तहलील वत-तकबीर व ज़िक्रुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करेंगे। यानी चौथा कलमा कसरत से पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और दूसरी रिवायत में इतना इजाफा है, अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। जोन सा भी कलमा याद हो चौथा वो पढ़ लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। दूसरे में है लहुल मुल्क व लहुल हम्द अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबा वला वलदा वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कसरत से चौथा कलमा पढ़ा जाएगा। दूसरा काम हदीस शरीफ में साबित है, वो क्या है? रोजे रखे जाएंगे। एक रोजे पर 1 साल के रोजों का सवाब मिलेगा। इस रिवायत में इतना है। दूसरी रिवायत में इतना इजाफा है, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ने के साथ हर दिन के रोजे पर 1 साल के रोजों का सवाब मिलेगा, और हर रात की इबादत पर लैलतुल कद्र की इबादत का सवाब मिलेगा, और हर नेकी पर 700 नेकियां लिखी जाएगी। कोई भी नेक काम करे इन 10 दिनों में वो 700 नेकियों के बराबर है। ये 2 रिवायतें हुई। तीसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इजाफा फरमाया है,
सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 10 दिन और रात में इबादत का सवाब 700 नेकी के बराबर है हर नेकी, तो क्या इन 10 दिनों में इबादत का सवाब मुजाहिद को जिहाद फी सबीलिल्लाह में मिलता है उससे भी ज्यादा मिलेगा? ये सहाबाए किराम का ज्यादती ये शौक था। इस पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद से भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों में इबादत का है। बात खत्म हो गई। मुजाहिद फी सबीलिल्लाह मारिके में एलाए कलीमतुल्लाह के लिए अपने जान और माल की बाजी लगा दे, कितनी बड़ी नेकी। इसके मुकाबले में भी इन 10 दिनों में इबादत का सवाब इबादत करने वाले को ज्यादा मिलेगा। हाँ, लेकिन वो मुजाहिद जिसका मारिके में से कुछ भी वापस नहीं आया यानी शहीद हो गया, तो शहीद मुजाहिद जिसने मारिके में जामे शहादत नोश फरमा लिया, वो इबादत में इन 10 दिनों के एतबार से इबादत में बढ़कर है। लेकिन अगर वो मुजाहिद फतह और गनीमत के साथ वापस आ गया और उसकी जान सलामत ले आया और उस जिहाद पर उसको जो सवाब मिलेगा, इससे भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों में इबादत का मिलेगा। लिहाजा बहुत बड़ी इबादत हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन दिनों में कसरत से पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब्दुल्लाह इब्न उमर यूं भी पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। गोया के जब हज और उम्रे में होते थे तो उस वक्त तलबिया कसरत से पढ़ते थे, इसलिए कि हज में 2 चीजों की कसरत मतलूब है, एक तलबियम और एक कुर्बानी। अल-हज्जु वस्सज्जु, जिसमें कसरत से कुर्बानी हो और कसरत से तलबिया हो। लेकिन जब मौसम हज में, हज के जमाने में, हज के दिनों में हाजी नहीं होते थे, अपने मकाम पर होते थे, तो ये चौथा कलमा, लेकिन उसके शुरू में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ा करते थे। ये 4 रिवायतें जिलहज महीने के 10 दिन और 10 रातों की इबादत के सिलसिले में फजीलत के हो गए। इसमें 9 तारीख को एक खास फजीलत है, हज का रुकने आज़म है, रुकूफ़ अरफा। अल्लाह उस दिन अपनी मखलूकात में से इंसानों को फरिश्तों के मुकाबले के अंदर इन पर फख्र फरमाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से फरमाते हैं, ये परागंदा सर गर्दा आलूद, एक ही लिबास में, एक ही हालत में, एक ही वजह में दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने से मेरी मोहब्बत के खातिर यहां आए हैं। ए मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने उनको माफ कर दिया और मैंने उनकी सिफारिश को कबूल कर दिया। इतना बड़ा दिन है। इस दिन का खास काम, जो आदमी अरफा के दिन का रोजा रखे उसको 2 साल के रोजों का सवाब मिलेगा, एक गुजरे हुए साल का और एक आने वाले साल का। लेकिन तन्हा एक रोजा रखना मकरूह है, इसलिए 8 और 9 का रोजा रखेंगे। लेकिन हाजी 8 तारीख को वकूफ अरफा में, 9 तारीख को वहां होगा, तो हाजी को अरफा के दिन रोजा नहीं रखना है। अलबत्ता जो लोग हज में नहीं हैं, अपने मकाम पर है, तो इनको 2 रोजे रखना सुन्नत और मुस्तहब है, एक 8 का और एक 9 का। 10 का रोजा रखना हराम है, इसलिए कि वो बकरीद का दिन है, तो एक दिन अगला मिलाया जाएगा 9 के साथ, यानी 8 जिलहज्जा का रोजा रखे और 9 जिलहज्जा का रोजा रखे। 2 साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमा देंगे, एक गुजरे हुए साल के और एक आने वाले साल के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिलहज महीने का चांद जो आदमी देख ले
اور ذیلحج مہینے کا چاند ثابت ہو گیا آئندہ جمعرات کو 29 کے حساب سے اور 30 کے حساب سے جمعہ، تو آقا نے فرمایا جب ذیلحجہ کی پہلی تاریخ ہو، وہ آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ ناخن نہیں تراشے گا، وہ مونچھیں نہیں بنوائے گا، وہ بغل کے بال نہیں لے گا، وہ زیر ناف بال نہیں کٹوائے گا، یعنی حجامت سے بچے گا، نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ مونچھیں کتروانی ہیں، نہ زیر ناف بال لینے ہیں، نہ بغل کے بال لینے ہیں، نہ بالوں کی حجامت بنوانی ہے۔ جو صاحب نصاب مالدار جس پر قربانی واجب ہے، ذیلحجہ مہینے کی پہلی تاریخ ہو گئی، اسی لیے میں نے یہ بیان مقدم کیا کہ آئندہ جمعہ کو ہو سکتا ہے پہلی تاریخ ہو 29 کے حساب سے، تو اس دن چونکہ جمعہ کو ہم حجامتیں بنواتے ہیں تو عید کا رمضان ذیلحجہ کا چاند ثابت ہو گیا تو اس دن نہیں بنائی جائے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار نہیں ہوں، مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، تو کیا ذیلحج کا چاند ثابت ہو جائے اس کے بعد میں بھی حجامت نہ بنواؤں، ناخن نہ تراشواؤں، مونچھیں نہ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، ذیلحج کا چاند ثابت ہو جانے کے بعد تو ناخن مت تراشوا، مونچھیں نہ لے، بغل کے بال نہ صاف کر، حجامت نہ بنوا، اور عید کی نماز کے بعد تو بنوا، تو تجھے بھی قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ لہذا اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہو گئی، اور مالدار صاحب نصاب کو تو اپنے مال کی قربانی اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کرنی ہے۔ یہ ذیلحجہ مہینے کی 10 راتیں اور 10 دنوں کے فضائل، یہاں شب قدر متعین ہے۔ 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت پر لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہ رمضان میں لیلۃ القدر تلاش کرنی پڑتی ہے اور یہاں متعین ہے، لہذا ان 10 راتوں کو عبادت کے اندر گزارنا چاہیے اور کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ یہ تو آیت کریمہ جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا حاصل ہو گیا، لہذا پہلی بات ذیلحجہ مہینے کے 10 دن اور 10 راتوں کی فضائل، اس کو زمانہ عمل کا قریب ہے، لہذا ان باتوں کو مستحضر رکھ کر کے ہم اس پر عمل کریں۔ جہاں سے میں نے مضمون چھوڑا تھا حاجی اور حرمین شریفین کے فضائل، اس کے بعد حج کے 5 دن، اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمت کے اندر حج لکھ دیا تھا، اب اللہ توفیق دے رہے ہیں، دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے حجاج کرام پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور اب قریبی زمانے کے اندر جو باقی ہیں وہ بھی پہنچیں گے۔ حج 5 دن میں ہوتا ہے، حج کے کل دن 5 ہیں۔ حاجی 3 پرکار کے ہوتے ہیں، ایک حاجی افراد بالحج، ایک حاجی قارن ہوتا ہے قران کرنے والا، اور ایک حاجی تمتع کرنے والا ہوتا ہے۔ گویا حج 3 طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ میقات سے خالی حج کی نیت سے احرام باندھنا، عمرہ نہیں، میقات سے حدود حرم سے بنیت احرام، بنیت حج احرام باندھنا، خالی حج ادا کرنا ہے اس سفر میں، عمرہ نہیں کرنا ہے، تو اس کو مفرد بالحج اور اس عمل کو افراد بالحج کہتے ہیں۔ خالی ایک سفر میں ایک کام کرے گا، افراد بالحج۔ دوسرا حاجی متمتع ہوتا ہے، ایک سفر میں 2 کام کرے گا، میقات سے احرام، بنیت عمرہ وہ حج باندھے گا، اور ابھی حج کے دن شروع نہیں ہوئے اس لیے مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کر لے گا، اور عمرے سے فراغت پر حج کے دن آنے پر
हरम ही से हज का एहराम बांधेगा। सफर एक है, डबल फायदा उठाया है। इफराद भी जायज है, चाहे दुनिया में कहीं से भी आदमी हज करे। तमत्तु भी जायज है, एक सफर में 2 काम करे, ये भी जायज। क़िरान एक सफर में 2 काम करने हैं, यानी मिकात से उम्रे का हराम बांधा, हज की भी नीयत कर ली, और उम्रे से फारिग होने के बाद एहराम छोड़ने का नहीं। चाहे हज को 10 दिन की देर हो, चाहे हज को 15 दिन की देर हो, चाहे हज को महीने की देर हो, उम्रा कर लिया, लेकिन कारीन था ये, एक साथ बगैर एहराम छोड़े हुए हज अदा करेगा और उम्रा अदा करेगा। इसको कारीन कहते हैं और इस अमल को क़िरान कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान से जाने वाले हुज्जाज किराम तमत्तु करते हैं, एक सफर डबल फायदा उठाते हैं। मिकात से हज और उम्रे का एहराम बांधते हैं और पहले उम्रा अदा कर लेते हैं, फिर एहराम से खाली हो जाते हैं और हज के दिनों में फिर हज का एहराम बांध लेते हैं। उम्रे में 4 काम करने होते हैं। बनियत उम्रा एहराम, ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नीयत से एहराम बांधता हूं, मेरा उम्रा आसान कर दे, मेरा उम्रा कबूल फरमा ले, बस नीयत हो गई। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। छोट खाली नीयत है। वहां जाकर के फिर दूसरा काम तवाफ कर लेना है, बैतुल्लाह के साथ चक्कर काट लेने हैं। तीसरा काम सफा मरवा की साई कर लेनी है। चौथा काम हलक या कसर करा लेना है। मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचकर अपनी जरूरियात से फरागत के बाद 2, 4, 6, 8 घंटे का मामला है, फिर यह आदमी खाली हो गया, उम्रा खत्म। अभी हज के दिन को देर है। हज तो शुरू होगी 8 जिलहज को, 8 जिलहज को हज शुरू होती है। अब इन बाकी दिनों में चाहे तो नए उम्रे करें, लेकिन बेहतर ये है कि मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर उम्रों की कसरत के मुकाबले में तवाफ ज्यादा करें, बैतुल्लाह के तवाफ ज्यादा करें, इसलिए कि उम्रे के लिए फिर से नए एहराम बांधने पड़ते हैं। आने जाने में पैसा भी खर्च होता है, आने जाने में वक्त भी खर्च होता है। एक उम्रा 1 दिन खा जाता है तकरीबन इज़्दिहाम की वजह से, वरना आधे दिन में भी ये काम हो सकता है। अब हज के 5 दिन हैं। पहला दिन जिलहज की 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। जिलहज महीने की 8 से 12 तक 5 दिन में हज होता है। तो हमारे यहां से वीजा तो 40 दिन की मिलती है। 40 दिन हज के नहीं है, हज के तो 5 दिन है। लेकिन इतने मुतबर्रक मकाम पर आदमी बहुत बड़ा पैसा खर्च करके जाता है, वीजा भी मुश्किल से मिलती है। इसीलिए उन लोगों ने भी वुसात से काम लिया कि चलो भाई मुतबर्रक मकाम में हाजी आता है, तकरीबन 1 दुक्का सफर होता है, तो इनको मुकद्दस मकाम में ज्यादा रहने का मौका मिले। मदीना मुनव्वरा में 10 दिन, 30 दिन मक्का मुकर्रमा में, तो अल्लाह के घर की ज़ियारत और इबादत और हज में एक मौका दिया जाता है 40 दिन का, वरना हज 5 दिन में किया जाता है। वो 5 दिन कौन से हैं? जिलहज महीने की 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 और 12, मुख्तसरन 5 दिन समझ लें। पहले से हम मक्के में मौजूद हैं, तमत्तु हमने करके फारिग हो चुके हैं, या ये फराज बिल हज करना था और मक्के में मुकीम हो गए, क़िरान हमारा नहीं है। अगर क़िरान है तो पहले से एहराम मौजूद होता है। 7 तारीख को दिन में हम एहराम में नहीं हैं, इसलिए कि कारिन नहीं है, मुतमत्ते और मुफरीद है, तो दिन में हजामत बनवा ले, इसलिए कि उम्रे की कोई पाबंदियों में नहीं है, मक्के में मुकीम हो गया है। ये हजामत बनवानी है, बनवा ले।
जितना भी काम आदमी को फारिग होना है 7 तारीख को हो जाए। फिर 7 तारीख को रात ही में आम तौर पर हज कमेटी से जाने वाले और टूर से जाने वाले बल्कि 7 तारीख को असर के बाद से रवानगी की तरतीब बनाते हैं। अगर हज कमेटी वाले या टूर वाले 7 तारीख को भी हमको मीना ले जावे तो भी कोई एतराज नहीं करना चाहिए। टाइम शुरू होता है 8 तारीख को नमाज फजर के बाद मीना की तरफ रवाना होना है। मीना में जोहर तक पहुंच जाना है 8 तारीख को। यहां जोहर, असर, मगरिब, ऐशा और 9 तारीख की फजर 5 नमाजें पढ़नी है। 8 तारीख में एक काम है, 5 नमाजें। 8 तारीख की 4 नमाज, जोहर, असर, मगरिब, ऐशा, और सुबह में 9 तारीख आएगी, उसकी फजर यहां अदा कर लेनी है। बस जिस कदर हो सके मीना के खैमों में रहकर तस्बीह, तहलील, तकबीर यानी जिक्र, मनाजात, दुआ, तिलावत, इस्तगफार का एहतिमाम करना है। 9 तारीख को नमाज फजर अदा करने के बाद अब अरफात की तरफ रवानगी होगी। अरफात ज़वाल के बाद वक्त शुरू होता है। अगर जल्दी पहुंच गए तो भी कोई एतराज नहीं। अलबत्ता 9 तारीख की ज़वाल के बाद से लेकर 9 तारीख की मगरिब के बाद तक अरफात में ठहरना ये हज का रुकने आज़म है। वक्त शुरू होता है ज़वाल के बाद और रहता है मगरिब तक। अगर कोई आदमी ज़वाल के बाद चला गया, वापस आ गया, घंटे 2 घंटे में, 4 बजे चला गया, 5 बजे निकल गया, हज तो हो गया लेकिन वाजिब छूटा, दम वाजिब होगा। जोहर के बाद से, ज़वाल के बाद से टाइम शुरू हो जाता है और मगरिब के बाद तक रहना है। अब हम हिंदुस्तान से हनफी हजरात जाते हैं, हम मक्के में मुकीम हैं, तो हम अपने खेमों में जोहर की नमाज जोहर के टाइम में पढ़ेंगे, असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ेंगे। अगर हम मस्जिद नमरा चले गए जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी, बहुत बड़ी मस्जिद है, इसका मगरिबी हिस्सा अरफात के बाहिर है और बाद वाला हिस्सा अरफात में दाखिल है। अगर कोई आदमी मस्जिद नमरा में किबले की तरफ वाली जगह में बैठा रहा और अरफात में नहीं गया, उसका हज अदा नहीं होगा, इसलिए कि ये हिस्सा हुदूद ये अरफात में दाखिल नहीं है मस्जिद का। कुछ हिस्सा अरफात से बाहर है, बहुत लंबी मस्जिद है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर नजर नहीं पहुंचती। यहां जो मस्जिद के इमाम के पीछे जोहर और असर पड़ेगा एक साथ, इमाम खुदमा देता है और 2 नमाज एक साथ पढ़ाता है। लेकिन अगर मस्जिद नवरा में हमने जोहर नहीं अदा की है, हमने जोहर अपने खेमों में अदा की है, और बेहतर है कि खेमों में अदा करें और अपने खेमे में रहे। यहां हुज्जाज किराम गलतियां करते हैं, एक दूसरे के खेमों में जाने का रिवाज बन जाता है, एक अजीब मंजर होता है, अजीब किस्म का मंजर। अपने खेमों में रहे भाई, जोहर से लेकर के मगरिब तक का वक्त है, इबादत करनी है, तिलावत करनी है, जिक्र करनी है, दुआ करनी है। यहां का एक खास वजीफा है, 100 मरतबा चौथा कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 100 मरतबा, 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 100 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस आदमी की मगफिरत हो जाती है। ये आदमी अल्लाह के यहां सिफारिशी बन जाता है। और आका ने फरमाया अगर पूरे अरफात वाले के बाबत भी ये अल्लाह से सिफारिश करे तो अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल कर लेगा। बहुत मुख्तसर अमल है, हर हाजी को करना चाहिए। किताबों से तलाश कर करके ये मसाइल जिक्र किए जाते हैं। कोई लंबे चौड़े वजीफे तो नहीं बताए, 15 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम है। चौथा कलमा हरेक को याद होता है, दुरूद इब्राहिम हरेक को याद है, और कुल वो अल्लाह वद हर मुसलमान के दिल में है। कितना मुख्तसर अमल है। जोहर के वक्त में पढ़नी है, खैमे में पढ़नी है। मक्के में मुकीम हो गए तो 4 पढ़नी है, और मक्के में मुकीम नहीं हो गए तो 2 अदा करनी है। लड़ना झगड़ना नहीं है। अरफात में असर के वक्त में हनफियों को पढ़नी है। मुकीम है तो 4, मुसाफिर है तो 2। मुकीम का मतलब ये है हम मक्के में जब से आए हैं तब से लेकर के मक्का वापस जाने तक मीना, मुज़दलिफा, अरफात ये मुस्तकिल मसाइल की हैसियत रखते थे। लेकिन अब मीना मक्के में दाखिल है, मुज़दलिफा मक्के में दाखिल है, अरफात मुस्तकिल मसार है। 15 दिन हो जाते हैं, इसलिए हम मुकीम हो जाते हैं। जब मुकीम हो गए तो पूरी नमाज अदा करनी है। यहां दूसरा कोई खास अमल नहीं है। ठहरने की जगह जबले रहमत के पास जगह मिले तो ठीक, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना साबित नहीं है। जबले रहमत के अतराफ में जहां जगह मिले वहां, या खैमा जो मुतय्यन है उस खैमे में, लेकिन जरा देखभाल कर ले कि खैमा हद अरफा से बाहर तो नहीं है। गुरूब के बाद निकलना है, गुरूब से पहले नहीं निकलना है। चाहे हज कमेटी वाले हों, चाहे टूर वाले हों, चाहे वो कितनी ही जल्दी मचावे, मगरिब के बाद निकलना है। दूसरा दिन पूरा हुआ, मगरिब पड़े बगैर मगरिब के बाद निकलने का है। यहां से 3 मील के फासले पर वापसी में मुज़दलिफा जाना है, और मुज़दलिफा हम जाएंगे पैदल 3 मील में जल्दी पहुंच जाते हैं, या गाड़ियों में जो तरतीब बनी है उसके मुताबिक, उसके ताबे रहें, अकल के घोड़े न दौड़ाएं। और वहां पहुंचकर एक अजान और एक तकबीर होगी। जमात के साथ करें तो, बगैर जमात के करे तो एक अजान और एक तकबीर के बाद पहले मगरिब पढ़ने की। अब मगरिब की सुन्नतें मुअक्कदा और नफल अभी नहीं पढ़ने की, बस पहली तकबीर हो गई है, अब ईशा का 4 फर्ज पढ़ लेना है। एक अजान और एक इकामत के साथ पहले मगरिब, फिर मगरिब फर्ज पूरे करके ईशा, और फिर ईशा का वित्र और मगरिब की सुन्नतें भी बाद में पढ़ ले। ये रात मुज़दलिफा की रात है। इस रात में यहां जितना हो सके इबादत का एहतिमाम करना है। सुन्नत और मुस्तहब पूरी रात जाग करके इबादत और दुआ में गुजारने का लिखा है। ये हराम के साथ हम होते हैं। यहां कुदरती तौर पर एक सर्द हवा चलती है, हाजी एहराम में होता है, और कुदरती एक आजमाइश होती है, नोट करना इसको। ठंडी हवा चलती है और मैदान में है, अब तो खेमे हो गए, तो हाजी सर ढांक लेता है, दम वाजिब हो जाएगा, सर और चेहरा ढांका नहीं जाएगा। ये रात जाग कर इबादत में गुजार दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की मगफिरत के लिए रात भर दुआ की थी, कबूलियत मौकूफ रही। फिर मुज़दलिफा के बाद की सुबह हुई, नमाज फजर के बाद दुआ कबूल हुई। जब वुकूफ मुज़दलिफा हो चुका, फिर अल्लाह के नबी हंस पड़े थे। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, हंसने का वक्त नहीं, क्यों हंसे? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मेरी दुआ मुअक्खर कर दी गई, और अब वुकूफ अरफा में मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर ली। लिहाजा पूरी रात जिक्र, तिलावत, दुआ, इस्तिग़फ़ार में गुजारनी है, और 80 कंकरियां इस मैदान से तलाश कर लेनी। एक टाइम था, किताबों में मसले लिखे हैं
कि पहाड़ों में से तलाश करने का, अब तो पहाड़ रहे भी नहीं, हुकूमत वहां छोटे छोटे संग्रह से बिखर देती है, वो ले लेने के। जैसे हम स्लेब भरते हैं तो कॉन्क्रीट कैसी होती है, ऐसी वहां दोनों किस्म की कंकरियां डाल देते हैं, वो ले लेने की, इसमें शक शुबा नहीं करने का। बाद हाजी पहाड़ों में ढूंढने जाते हैं और बाद हुज्जत तो माशाअल्लाह पत्थर लेकर तोड़ते भी हैं। ये कुछ साबित बाबित नहीं है, ऐसा कोई तकल्लुफ इस्लाम में नहीं है। कंकर ले लो, इस मैदान में हुकूमत बहुत समझदार है, निजाम कर देती है। 80 कंकरियां चुन लो, 70 काम में आने वाली है, लेकिन एकस्टा 10 ले लेनी है। अब सुबह सादिक के बाद वुकूफ मुज़दलिफा वाजिब है, इसमें खास ध्यान देना है। यहां लोग भाग जाते हैं फौरन नमाज फजर से पहले भी। सुबह सादिक के बाद से लेकर तुलुए आफताब तक मुज़दलिफा में ठहरना वाजिब, और वजूब के खत्म पर दम वाजिब होगा। कौन सी तारीख हो गई? 10 तारीख, 10 जो यहां ईद का दिन। अब 4 काम आज करने हैं तो अल्लाह ने ईद माफ कर दी। वहां ईद नहीं है, ईद की नमाज नहीं है, वहां हज है। क्योंकि हाजी को आज 4 काम करने पड़ेंगे, अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी हाजी के लिए। पहला काम क्या करेंगे? वुकूफ मुज़दलिफा हो गया। 10 तारीख की फजर के बाद सुबह सादिक से लेकर के तुलुई आफताब तक, अब उलमा ने गुंजाइश हदीसों से ये निकाली कि नमाज फजर भी वुकूफ के दर्जे में है, दम से आदमी बच जाएगा। लेकिन सुन्नत पर अमल करते हुए तुलुई आफताब के बाद अब मीना जाएंगे 3 मील और। मीना जाकर के इस दिन में 4 काम हैं। पहला काम, बड़े शैतान को 7 कंकरी मारनी है, जमराए अक़बा। बड़े शैतान को, यानी मक्का की तरफ से आते हुए जो पहला शैतान है, मुज़दलिफा से मीना की तरफ जाते हुए पहला शैतान नहीं, इधर से हम आए हैं तो उधर से जो पहला शैतान पड़ता है जमराए अक़बा, बड़े शैतान को 7 कंकरी मारनी है। इसका टाइम यहां से जाने के बाद से ज़वाल तक है, लेकिन ज़वाल के बाद से मगरिब तक भी मार सकता है, मगरिब के बाद से लेकर के सुबह तक भी मार सकता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अब यहां से जाने के बाद ज़वाल तक में पहली कंकरी मार दे। एक काम हो गया, चाहे घंटे में लग गई, 10 बजे फारिग हो गया, कोई मसला नहीं। अब दूसरा काम शुरू होगा। दूसरा काम, हाजी को कुर्बानी करनी है। हमने जहां तय किया है वो वक्त दे चुके हैं हमको, या गवर्नमेंट में पैसे बैंक में जमा किए बैंकुल इस्लामी में, और उन्होंने टाइम दिया, तो उसके 2, 4, 6 घंटे के बाद अपना हलक या कसर कराना है। पहले कुर्बानी हो गई, फिर तीसरा काम हलक या कसर। अब हाजी हलाल हो गया, लेकिन बीवी हलाल नहीं हुई, एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई, एहराम की पाबंदी खत्म हो गई, लेकिन बीवी हलाल नहीं है। 3 काम हो गए, बड़े शैतान को कंकड़ी मार ली, कुर्बानी हो गई, और उसके बाद हलक या कसर हो गया। अब एहराम की पाबंदियों से आदमी फारिग हो गया, कोई एहराम की पाबंदी नहीं, लेकिन बीवी एक हलाल नहीं। अब चौथा काम, मक्के जाकर के तवाफ ज़ियारत करना है। उसमें तवाफ है, साई है, और अगर हमने पहले से 7 तारीख को रमल और इस्तिबा के साथ हज की सही मुकद्दम कर ली है, तो अब सही भी नहीं है, खाली तवाफ कर लेना है। तवाफ और सही से फारिग हो गए, अब औरत भी हलाल हो गई, यानी तवाफ ज़ियारत के बाद अब वापस फिर मक्का से वापस मीना चले जाओ, होटलों में मत जाओ, अपने घरों में मत जाओ, चाहे पूरी रात निकल जाए, और वहां रात का एहसास बेसास होता नहीं, इसलिए कि पूरा काम ही काम रहता है। ये खास काम का दिन है, और ये इंपोर्टेड काम के दिन है। अब 11 तारीख आएगी, मीना जाकर के अब ज़वाल के बाद, ज़ोहर के बाद से अब दूसरे दिन, देखो इस्लाम ने कितनी सहूलत कर दी, इसलिए कि तवाफ़ ज़ियारत से हाजी फारिग होने में टाइम दिया।
اب زوال کے بعد تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے، ساتھ ساتھ ساتھ. اب پھر مینا میں قیام کر لینا ہے. تھکے ہوئے ہو تو خوب آرام کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، سو جاؤ اطمینان سے اپنے اپنے خیموں میں. رات گزر جائے، پھر تیسرے دن صبح صادق کے بعد واپس ان تمام شیطانوں کو کنکری مارنی ہے 13 تاریخ کو. بس حج ختم ہو گیا. اتنے مختصر کام ہے حج کے، یاد رکھنا بھی بہت آسان. ایسے نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آج کے دن کے یہ کام ہیں، آج کے دن کے یہ کام. زیادہ سنت اور مستحب چیزیں یاد نہ رہیں تو فرض اور واجب یاد رکھ لینے کی. حج میں فرض تو 2 چیزیں ہیں، ایک بنیت حج احرام اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ. باقی چیزیں واجب ہے، اور واجب کی چھٹی کی تلافی دم سے ہو جاتی ہے. لیکن رکن اگر حج کا فوت ہو گیا تو حج نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے. یہ حج کے 5 دن ہو گئے. اس سال دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے حجاج کرام اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں. پہلے لمیٹڈ حج تھا کچھ سال، اب وسعت بڑھتی گئی پہلے کے مقابلے میں زیادہ. لہذا بڑے مبارک ہیں وہ حضرات جو دیرینہ تمناؤں کے بعد جن کی قسمت میں خداوند قدوس نے یہ اوسر مقدر کر دیا. یہ حضرات پہنچیں گے، اپنے یہاں سے بھی کچھ حجاج کرام تشریف لے گئے، کچھ آج اور کل بھی جا رہے ہیں. ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. حج سے پہلے کوئی کھانا ثابت نہیں ہے، حج سے پہلے کوئی خرچہ ثابت نہیں. البتہ حج ادا ہو چکا، اس عبادت کے شکرانے میں حج سے آ کر کے کھلانا چاہیے، چاہے دام خرچ کرے اگر اللہ نے دیا ہے تو. حج سے آنے کے بعد کھلانا سنت ہے، چونکہ فریضہ ادا ہوا، اور فریضے کی ادائیگی کے شکریہ میں کھلاوے، لیکن طاقت کے مطابق کھلاوے، قرضہ لے کر نہ کھلاوے. حج سے پہلے جانے سے پہلے 1 دن 2 دن کوئی کھانا ثابت نہیں. لہذا اگر کسی حاجی نے حج میں جانے سے پہلے دعوت دی ہے تو ہم اس میں نہ جاوے تو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. اگر وہ ناراض ہو جاوے تو بھی ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن حج سے آنے کے بعد اگر وہ دعوت دے تو خوشی سے جانا چاہیے، اس میں ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کی شکرانے کی عبادت میں ہم شرکت کریں گے. شریعت میں جو چیز جہاں رکھی گئی ہے اس کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا ہے، اس کی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو رہی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کثرت سے دعا کرنی چاہیے. اللہم صیبا نافعا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اسق عبادک وبہیمتک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت. یہ دعائیں حدیث پاک کے اندر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، اور حدیثی الفاظ کی رعایت بھی بہت ضروری ہے. من گھڑت الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں. اللہم صیبا نافعا ایک دعا، اللہم اغثنا دوسری دعا، اللہم اسقنا تیسری دعا، اللہم اسق عبادک وبہیمتک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت یہ چوتھی دعا. اس قدر گناہ اور معاشرے میں تباہیاں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو رہی ہے. یہ اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت. 2 گناہ سے آدمی کو خاص بچنا چاہیے، ایک ظلم اور ایک حقوق العباد اور بندوں کی حقوق کی حق تلفی. 2 خطرناک چیزیں ہیں کہ صاحی انسان مقبول ہے، اگر وہ ظالم ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. پیغمبر کی مزدلفہ کی صبح میں وقوف کے وقت قبول ہوئی، لیکن 2 شرطیں تھیں. تیری امت کے ظالم کو میں نہیں معاف کروں گا، اور جو بندوں کے حق ضائع کرے گا اس کو نہیں معاف کروں گا. انسان کی چمڑی کی زبان 32 دانتوں کے درمیان تیزی سے مسلمان کے بابت چلتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے
वो मालिक की तकदीर हर सांस और हर सत्ते को लिखता है और किरामन कातिबीन उसको महफूज करते हैं। बहुत बुराइयां माशरे में तेजी के साथ चल रही, किसी के बाबत कुछ बोल देना जैसे मक्खी बैठी थी और उड़ा दी। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत आई थी, अपनी जरूरत पूरी करके तशरीफ ले गई, आका तशरीफ ले आए घर में। अम्मी आयशा से पूछा कि वो कौन थी, तो अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि वो ठींगनी, हाथ से इशारा कर दिया, वो ठींगनी औरत। बात जवाब वाक़े के मुताबिक था। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर ये तेरी बात 7 समंदर में डाल दी जाए, कसम खुदा ताला की उसका पानी कड़वा करके रख दे। हालांकि तारुफ की गर्ज से किया था, ताहकीर की गर्ज से नहीं। मन फावे ऐसी बातें लोग चला देते हैं, अजीब अजीब किस्म की, और अजीब अजीब किस्म की वाहियात और खुराफात में लोग मुब्तला। अल्लाह की दी हुई जान कीमती है, उसके हुकूक है, इंसान को हद में रहने का हुक्म दिया है, हद से आगे गुजरने का हुक्म नहीं दिया। याद रखो, जो इंसान हद में रहेगा वो इंसान अल्लाह की तरफ से आफियत पाएगा। जहां हद तोड़ी, चाहे कोई न देखता हो, काली रात हो और उसके अलावा कोई न हो, लेकिन जहां हद तोड़ी, मालिक जुल जलाल वल इज्जत उसके घर बैठे उसको जलील करके रखेगा। मनसूबाबंदी, इस्लाम खिलाफ दुश्मनी और पॉलिसियां ये कोई मामूली चीज नहीं है, सोचना चाहिए। इबरत का मकाम है। मनकुहा बेटी किसी के निकाह में है और 2-2 बच्चे उसके तड़प रहे हैं, 3-3 बच्चे, और कोई 5 बच्चे का बाप उठा करके होशियारी मार करके उसको अपने घर में बिठा देता है और उसने तलाक भी नहीं दी। ये वो गुनाह है, कसम खुदा ताला की, जिस दिन खुदा इस जमीन को तांबे की बना देगा, वो जमीन तांबे की नहीं बनेगी। ये जमीन को कूदा इंसान उस पर वो हरकतें करेगा कि मालिक के तकदीर इस जमीन को तांबे में बदल देगा। और फिर कहते हैं, वट मारते हैं कि समाज ने क्या कर लिया? क्या समाज खुदा है? क्या ये आसमान से उतरा है? क्या इसको इस पर कोतवाल बनाया है? नहीं नहीं मेरे बुजुर्गों, मालिक के तकदीर जुल जलाल वल इज्जत के सामने हिसाब देना है। या अलम खइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, आंख की कनखड़ियों से होने वाला गुनाह मेरा अल्लाह लिखता है। मेरा अल्लाह दिल के भेद को जानता है। किसी मुसलमान के बाबत बात चला देना, मुसलमानों के दरमियान में तफरीक सुलह की गर्ज से कोई बात बोल दी और इसको बढ़ा चढ़ा करके इस्लाम और मुसलमानों पर तहमतें घड़ना, हालात मुल्क के बहुत नाजुक है। मुल्क इंतहाई खतरे की दहाने पर आकर के खड़ा रह गया है। कब मुल्क टूट जावे, और अब टूटेगा, इसलिए कि जुल्म बढ़ चुका है। अल्लाह का कानून है, कुफ्र के साथ खुदा हुकूमत चलाता है, चलाएगा कयामत तक। लेकिन अल्लाह जुल्म के साथ न घर चलाता है, जुल्म के साथ न मस्जिद चल सकती है, न मदरसा चल सकता है, न मुसलमान समाज चल सकता है, न मुस्लिम माशरा चल सकता है। मुल्क तो दूर की बात है। जिस घर में जुल्म हो वो जुल्म कभी नहीं। ऐसी ऐसी कारगुजारी आ रही है, बहुत ताज्जुब की बात। कल 2 घंटे की एक मजलिस पर जो कारगुजारी आई, अब इन बेटियों को हो क्या गया, उसके मुकद्दर का धनी उसको अच्छा नहीं लगता, और दूसरा के निकाह में उसकी बीवी है, वो उससे जो है बातें कर रही है, और उसके हरम में कोई हाथ डालता है, किसी के हरम में कोई हाथ डालता है। यौम तुबद्दलुल अर्द गैरल अर्द, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिस दिन ये माटी की जमीन को खुदा तांबे की जमीन की शक्ल दे देगा, और अल्लाह आसमान पर से लिमनिल मुल्कुल यौम ऐलान करेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही जवाब देगा। एक तो मुल्क के बदलते हुए हालात, और दूसरे नंबर में ये तो हम इस्लामी समाज की एक बड़ी तादाद यहाँ है तो हमें मालूम नहीं। दूसरी तरफ फक्र, मंगवारी, खानदान के खानदान, दाढ़ियां सफेद है,
और वो मुर्तद हो गए फकर की वजह से, फकीरी की वजह से। 100 आदमी का घराना 2 दिन पहले माली तंगी और मईशत की तंगी और फकीरी के खौफ की वजह से इतनी लंबी सफेद दाढ़ियां, और वो बूढ़े 75-80 साल के और इस्लाम से हाथ धो करके काफिर बन रहे हैं। अजीब तमाशा है दुनिया में। आका ने फरमाया था कादल फक्र यकून कुफरा, फकीरी अच्छी चीज नहीं है, फकीरी आदमी को काफिर बना देती। और ये बनाया पैगंबर का इरशाद अपनी जगह पर अटल है। नबी ने फरमाया कि फकीरी इंसान को काफिर बना देती है। 100 इंसान के घराने कुफ्र में 2 दिन पहले जिनकी दाढ़ियां, अब कब से पैदाइशी मुसलमान, नस्ली मुसलमान, निस्बती मुसलमान नहीं था। अजीब अजीब खराफात उम्मत में हो रहे हैं। लिहाजा वुसाते ज़र्फी से काम लिया जाए और कोशिश की जाए अल्लाह के हक भी अदा हो, अल्लाह के मखलूक के हक भी अदा हो। नमाजों की पाबंदी, बड़े दिन आ रहे हैं, तौबा के दिन है, जिससे जो हो गए अल्लाह से सुलह कर ले, और जिस बंदे के साथ जो हक तलफी हुई उस बंदे से माफी चाह ले। ये दुनिया के अमल की जगह है, बदले की जगह आखिरत है। अगर यहां समतोल हो गया तो आखिरत में सीले ही सीले, इनाम ही इनाम नसीब होने वाले हैं। एक तरफ पैगंबर की जात पर हमले, दूसरी तरफ मजहब पर हमले, शाइर इस्लाम पर हमले, मसाजिद मंदिरों की सूरत में तब्दील हो रही है। अजीब कोहराम मुल्क में मच रहा है। बहुत करीब में वो सूरज चमकने वाला है जिस दिन ये जुल्म की तेज धार खत्म होगी और इंसाफ का सूरज अब चमकते हुए ज्यादा दिन का इंतजार रहेगी। इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत तेजी के साथ जब जुल्म बढ़ चुका है तब इंसाफ का सूरज, किसी भी किस्मत के अंदर सूरज तुलू होकर के रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भलाइयों की जो है चाबियां बनाए और बुराइयों के लिए ताले बना दे। अल्लाह हमें भलाइयों के ताले न बनाए और बुराइयों की चाबियां न बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बहुत मुस्तफीद मदरसा है झारखंड का, इसमें 250 तलबा हैं, 50 लाख का खर्चा है। वहां से उलमाए किराम तशरीफ ले आए हैं, ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से। खास तौर पर इस मदरसे का जरूर ताआवुन फरमाते जाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या खैरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन। ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपके ज़ात आली से ताल्लुक अता फरमा। ए बहुत बड़ी कुदरत के मालिक अल्लाह, तेरी कुदरत का नमूना तो देख, कितनी आग झरती गर्मी पड़ रही थी। ऐ अल्लाह अग्नि बारते शोले उठ रहे थे। अल्लाह तूने मिनटों के अंदर कायनात की काया कैसी पलट दी। अल्लाह आसमान से कैसी मूसलाधार बारिश उतार दी। ऐ अल्लाह जब तेरी धरती पर इस कदर भारी जुल्म किया जाता है तो कयामत भी मिनटों में आनन फानन कायम करेगा। इंसान के कलेजे मुंह में आ जाएंगे और कायनात जर्रा जर्रा ऐ अल्लाह रेजा रेजा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी कुदरत का मालिक है। ऐ अल्लाह तो गरजता भी है तो बरसता भी है, तो अपनी कुदरत की निशानियां बता रहा है। ऐ अल्लाह इस कदर नेमतों के मालिक ज़ात, ये इंसान तेरा खा करके तेरी जमीन पर तेरी बगावत करता है। ए मालिक के तकदीर फिर भी तू चला रहा है। खुद की हलाल तय्यब मनकूहा बीवी निकाह में है, 3-3 बच्चे हैं। ऐ अल्लाह जो माँ माँ कहकर के सिसकियां मार रहे हैं, ऐ अल्लाह जिसने उसको घोड़िए में छोड़ करके सोता चली गई, ऐ मेरा रब, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने आसमान नहीं गिराया, तूने जमीन को अल्लाह छीर नहीं दिया। मेरे मालिक धरती पर तेरा खा करके ये पलीदी खाने वाला इंसान रखेगा, ये जानवर रखेगा। ऐ रब तेरी दी हुई रोजी खा रहा है, तू है उस वाशरे पर। ऐ मेरे परवरदिगार
تو بہت کریم کا مالک اللہ ہے، تو بہت رحم کا مالک اللہ ہے۔ نادانی بھی کوئی انسان کر لیتا ہے، ٹھیک ہے تو غفار ضرور ہے۔ اے اللہ دیدہ وہ دانستہ ہوشیاری دکھائے، اے میرے رب تیری دھرتی پر وہ باقی چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اے میرے اللہ پوری کائنات اس وقت سسکیاں لے رہے ہیں، عجب کشمکش میں مبتلا ہے، ہمارا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کی پلاننگ مکمل طور پر تیار ہے اور اس پر محنت ہو رہی ہے، مساجد ڈھائی جا رہی ہے، ہماری ان ووٹوں سے ہی مساجد ڈھائی گئی ہے۔ اے میرے پروردگار مسلمان کس سے کام لے رہا ہے؟ اے میرے پروردگار کس کے دسترخوان کے ٹکڑے چن رہا ہے؟ اے اللہ یہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، اسلام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، مسلمانوں کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اے اللہ نبی اپنی قبر آطہر میں وہ چین نہیں دینے دے رہا ہے امتی۔ اے میرا رب تیرے پاس ان کو سکون ملنا چاہیے، قبر آطہر میں میرا نبی بے چین پریشان ہے، میرا نبی داؤ پر لگ گیا ہے، بہتر المؤمنین کے ساتھ کیچڑ اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ ان گیروں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہمارے ماؤں کے ساتھ بدتہذیبی کی ہے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ بدچلنی کی ہے، اس کے نتیجے میں پیغمبر داؤ پر لگا ہے۔ جو امت کے لیے تڑپتا تھا، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، اے اللہ اس وقت تک نبی نے اے اللہ تیری ملاقات پسند نہیں کی جب تک کہ امت کے حال کی پوری اللہ تجھ سے صلح نہیں کر لی، تجھ سے طے کروا کر کے نبی رہا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ وہ لاڈلا نبی، وہ دلارا نبی، وہ ابینا کا در یتیم، اے اللہ وہ عبداللہ کا لفظ جگر، وہ محمد الرسول اللہ، بہت حالات سے اے اللہ بیچار دنیا سے تیری زبان رحمت میں تشریف لے آیا، امت کا ہر کڑوا کا سیلا برداشت کیا، یہ خاردار وادی سے گزرا۔ اے میرے پروردگار امت کے حالات پر رحم فرما دے۔ ہاسپٹلوں میں بہت پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جوال اولاد بھی ہے، ماں باپ کی کمرے ٹیڑھی ہو چکی ہے، زندگی کے سرمایے پورے لگ چکے ہیں۔ اے میرا پروردگار تو ہی شافی الامراض ہے، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، پریشان البائیوں کی پریشانی دور فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی بھی شکلیں پیدا فرما، ایمان کے ساتھ موت کا گھونٹ پی کر قبرستانوں میں جنت کے مزے لینے والے بہتر ہے۔ میرے پروردگار اس معاشرے میں جہاں تجھے للکارا جاتا ہو، تیرے نبی کے نائبین کو للکارا جا رہا ہو، اللہ وہ اچھے ہے جو نعمتوں میں لذت لے رہے ہیں، اگرچہ وہ زمین کے باطن میں ہے، ہم بہت برے ہیں جو تیرے قہر کو دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار پھر بھی تو مہر کی بارش برسا رہا ہے، تو ہی اللہ ہے، تو ہی رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ اس ملک کے ظلم کو ختم فرما، جان حیت کو ختم فرما، مساجد کی آب یاری فرما، مدارس کی آب یاری فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو 100% نماز سے بھرپور فرما دے، مدارس کی آب یاری فرما، اے اللہ حفاظت فرما، تیرا دیا ہوا سرمایہ اے اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا جوان تیزی کے ساتھ جگار میں، تیزی کے ساتھ شراب میں، تیزی کے ساتھ نشہ آور چیزوں کے بیچنے خریدنے میں، اس کی دلالی کرنے میں بے باک ہو کر کے اللہ کاروبار چلا رہا ہے۔ میرا پروردگار جب آج تیری رحمت جوش میں ہے تو تو بھی بڑے جوش میں ہے۔ اے میرے پروردگار تجھ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں، توبہ بھی مانگ کر رہے ہیں، اللہ معاشرے سے ان برائیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ بچی ابھی خالی تھوڑی سمجھداری پیدا ہو رہی ہے، اے اللہ تب سے زنا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، پرائے مردوں سے تعلقات شروع ہو رہے ہیں، موبائل نے تو ہماری ہستی کو ختم کر دیا ہے، ہماری عزتوں کے دیوالیے نکال دیے ہیں۔ اے اللہ گھروں میں بیٹیاں بھی رسابڑے اور اس گھر کی ماں اے اللہ وہ بھی رسابڑے، کیسے حالات امت کے چل رہ گئے۔ اے اللہ پرائے مرد اس قدر اے اللہ بے باک ہو چکے ہیں
کہ جس کے نتیجے میں معاشر انتہائی خطرناک تیزی کے ساتھ بہت ہی کار مذلت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہم ذلیل ہے، اے اللہ ہم بہت ہی تیری رحمت سے دور ہے، تجھے منانے آئے ہیں جمعہ کے مبارک دن میں۔ اے مولا ہر دکھ دل تیرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اے بارش کے قطرات کے مالک اللہ، اس سے رحمتیں پیدا کرنے والا رب، جو خواہشات کے دباؤ میں آ کر ماحول سے دور رہ کر بے دینی کے نتیجے میں انجام سے ناواقف ہو کر جو غلطیاں صادر ہوئی توبہ کرتے ہیں، معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، اللہ بگڑے ہوئے تمام مسائل کو بنا دیجیے۔ اللہ جو برائیاں تیزی کے ساتھ معاشرے میں جنم لے رہی ہے اور جنم لے چکی ہے اور اس پر بنا بن چکی ہے، اللہ اس کو بالکل یا ختم فرما دے، امن و سلامتی نصیب فرما دے۔ اللہ فقر اور محتاجگی کو دور فرما دے، سہولتیں اور آسانی پیدا فرما دے، بے جا اخراجات سے اور بلا ضرورت خرچ کرنے سے ہمارے مال کی اللہ ہمیں اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم بلا ضرورت مال خرچ نہ کریں۔ تیرا دیا ہوا سرمایہ کسی کے ایمان کی حفاظت کے پیچھے استعمال کرے، اللہ ایسی توفیق عطا فرما۔ امت کی جتنی پریشانیاں ہیں، اے پریشانی کے پیدا کرنے والے اللہ، اے بارش کے قطرات کو اتارنے والے اللہ، اے بہت بڑی رحمت کے مالک اللہ، ہماری جتنے قصور ہیں، کوتاہیاں ہیں، اے اللہ جو ہمارے ذہنوں میں ہیں اور جنہیں تو بہتر جانتا ہے، معاشرے سے اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اچھائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ حاضرین کے دل میں جتنی جائز حاجتیں مرادیں ہیں اپنے فضل کرم سے پوری فرما۔ یہ زمین کی سوتوں میں پانی داخل ہو اور اس سے کنووں کی سینچائی ہو اور اس سے تالاب کی آب یاری ہو اور اس سے کھیتیوں میں برکت کے سامان پیدا فرما۔ اے اللہ پانی سے آپ نے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ایسی بارش کہ جس میں بجلیاں گرنے سے آدمی اور جانور مر جاتے ہیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما اور رحمت کی بارش عطا فرما، موسلادھار بارش عطا فرما، برکتوں والی بارش عطا فرما۔ جو کمی کوتاہی جس کسی لائن میں ہے، انفرادی اجتماعی، اے اللہ سب کو اے اللہ بہتر سے بہتر بنا دیجیے اور ساری خامیوں اور کوتاہیوں کو ختم فرما دیجیے اور ساری بہتریاں ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے لوگ تیری جوار رحمت میں چلے گئے سب کی کربت مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کی روحوں کو لیگن میں داخل فرما۔ اے اللہ اس ملک کی کفر اور شرک تیز تر راہ ان کی کاوشیں اور کوششیں اور ان کے پلاننگ کو انہی پر پھیر دیجیے۔ اے اللہ انہی پر پھیر دیجیے، انہی پر پھیر دیجیے۔ اے میرے پروردگار کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں ان کی سازش سے ان پر پھیر دیجیے اور اسلام مسلمانوں کو امن سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل پیارے آقا کے حسنات کے صدقے طفیل میں، اور آج جس فضل و کرم سے جمعے کے دن میں تو نے جو رحمت کی بارش عطا فرمائی ہے، اے پروردگار ان مبارک قطرات کے لاج رکھ کر جو تیری ثنا پر رحمت 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 ہے، مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما لے۔ آج واپس نہ کر اے اللہ، تو کب تک واپس بھی کرتا رہے گا، بغیر قبول کیے ہوئے تو واپس کرتا رہے گا۔ اے میرے مولا اس بستی سے جانے والے حجاج کرام اور عالم سے جہاں کہیں سے اے اللہ چپے چپے کونے کونے سے پہنچ رہے ہیں، راستے میں ہیں، پہنچنے والے ہیں، سب کے حج کو آسان فرما، سب کے حج کو قبول فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے اس اجتماع کی لاج رکھ کر ملک ہندوستان میں امن و آستی نصیب فرما اور اسلام اور مسلمانوں کی لاج رکھ لے، اور اللہ ہمارے اسلام کی قربانیاں کو رائے گاہ ہو جانے سے محفوظ فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم۔